prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yesterday we were discussing shloka number 26 and I was supposed to do a little bit of practical applications. We will do that before we start shloka number 27. So in shloka number 26, we learned that how inconsiderate people also cause harm like the incorrect people. मतलब जो अन्याय को होते हुए देखते हुए चुपचाप खड़ा है, वो जो अन्याय कर रहा है उसका भागी है. तो when we remain silent when some injustice is being done, we become a part of that injustice. And Krishna is telling that we must not break people, but we must break people's misconceptions. और हमें जैसे कि you might have heard kafir ko maro, but that's not the principle that Bhagavad Gita teaches us. Kafirata ko maro, kafir ko sudaro. So Krishna is telling, if there is a karmi who is working, we must not agitate him by pushing him towards Krishna consciousness immaturely. We must take him step by step. अगर कोई नया व्यक्ति है, भक्ति मार्ग में उसको धकेलना नहीं है, तो धीरे धीरे उसको भक्ति मार्ग में लेके जाना है. पहले कुछ सेवा करा के, पहले कुछ धनराशि का सेवा करा के, कुछ काम काज की सेवा करा के भगवान के लिए, और धीरे धीरे प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देते हुए, उनको मार्गदर्शन देते हुए हमें आगे बढ़ना है. So spiritual success depends on stamina, not on speed. तो ये जो आध्यात्मिक पथ है, एक लंबी रेस है. ऐसा नहीं कि 100 मीटर डैश है कि आज स्टार्ट किया तो कल खत्म करना है, या आज ही हमें सब कुछ पाना है. तो इट्स लाइक ए मैराथन रेस. तो मैराथन रेस में हमें we have to pace our steps, not that we initially run so fast that after a few kilometers we'll not be able to run. ऐसा नहीं है कि हम इतना तेजी से दौड़ना स्टार्ट करेंगे कि कुछ समय के बाद हम दौड़ ही नहीं पाएंगे. तो आध्यात्मिक पथ में भी हमें नए लोगों को धीरे धीरे लेके जाना है, हमें भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है. So the standards are made to inspire people and not to condemn them. और यदि कोई कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमें निंदा नहीं करना है, उसको प्रेरणा देना है, उसको सहायता देना है कि वो भी कैसे धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ सके. बिकॉज जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इस लेवल में ऐसा करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल में ये सब करना चाहिए, ये एक आदर्श के लिए है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए. तो सब लोग एक ही स्तर पे नहीं होते हैं. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. भगवान कृष्ण बोल रहे कि बहु जन्म के बाद कृष्ण का ज्ञान किसी को मिलता है. तो हम सब, आप सोच सकते हैं कितना भाग्यशाली है. हाउ फॉर्चुनेट वी आर that we are already in a bona fide movement started by a pure devotee, Srila Prabhupada. And another word was used in the shloka, Joshayet.
So what is the actual translation that Prabhupada does for this word Joshet? Dove-tailed. मतलब इस पद का अर्थ को प्रभुपाद जी ने, जोशेत पद का अर्थ को मतलब उनको उस पद पे लेके जाना, डाउटेड, उनके जो टेंडेंसीज है उसको भक्ति में लगाना. So we must dovetail things in Krishna's service. तो उनके सारे जो टेंडेंसीज है, स्वभाव है, उसको हमें और जो टैलेंट्स है उसको हमें भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए. So a wise person acts and sets example. मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे अपना जीवन को निरूपित करता है कि लोगों को बोलने से ज्यादा वो करके दिखाता है. He sets एक उदाहरण वो सेट करता है. So the ultimate purpose of Vedas is to bring people to Krishna. तो सारे कर्मकांड से लेके भक्ति योग तक जो भी माध्यम वेदों में दिया गया है उसका अल्टीमेट एम क्या है, उसका परम लक्ष्य क्या है, सबको भगवान श्री कृष्ण में, कृष्ण से जोड़ना, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना. So we must set a good example for others and engage them and encourage them according to their level of spiritual practice. तो अभी सब लोग एक ही स्तर पे नहीं है. आप 5 साल पहले आप सोच सकते हो आप कौन से मतलब लेवल पे थे, अब आप कहाँ तक पहुंच गए. वैसे एक नया आदमी आएगा तो उनको हम कृष्ण भावनामृत के संग में लेके आ रहे हैं, तो उसको हमें प्रोत्साहन देना है, उसको एंकरेज करना है, उसको मार्गदर्शन देना है, एक भक्त से मिलाना है तो उसको शिक्षा दे सके, और पापा जी के पुस्तकों पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना है, उनके लेक्चर्स सुनने के लिए उनको प्रेरित करना है. ये भक्त होने के नाते ये हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So we will move now to the shloka for starting for today. We are doing shloka number 27, a very important shloka, very popular shloka also. Prakrite kriyamānāni gunai karmāni sarvashah ahankara vimūಢātma kartāham niti manyate. तो कृष्ण भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि, the bewildered spirit soul, जो बद्ध जीवी है, under the influence of 3 modes of material nature, जो त्रिगुणों के प्रभाव से thinks himself to be the doer of activities, ये सोच के बैठता है कि मैं ही सब कर रहा हूं, मैं ही करता हूं. गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, which is inactually carried out by nature. लेकिन ये सारे कार्य कौन कर रहा है? ये हमारे गुण और कर्म के अनुसार प्रकृति हमसे करा रहा है. तो अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार में एक विमूढ़ात्मा ये सोचता है कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, सबका कर्ता मैं ही हूं. लेकिन कारण है प्रकृति और उनके गुण और कर्म के अनुसार वो अपना जीवन को आगे लेके जा रहे हैं. So in this purport, Prabhupada very nicely explains this principle. 2 persons, one in Krishna consciousness and other in material consciousness. मान ले कि 2 व्यक्ति है, एक कृष्ण भावनामृत में है और एक बद्ध जीवी है जो भौतिक व्यवहारों में मतलब व्यस्त है. They are working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. साधारण दृष्टि से देखा जाएगा तो हमें लगता है कि अरे ये भी तो वही कार्य कर रहा है, ये भी उठता है, सोता है, खाता है, पीता है और कामकाज करता है, अपने काम धंधे में ये भी लगता है. भौतिक बद्ध जीवी भी लग रहा है, ये भक्ति मार्ग में जो है वो भी लग रहा है, तो इसमें क्या अंतर है? प्रभा जी बोलते हैं इसमें बहुत एक अंतर है, a wide gulf of difference. The person in material consciousness is convinced by false ego, ahankara vimūఢātma, that he is the doer of everything, karta ham iti manyate. वो सोचता है मेरे ही एफर्ट से मेरे जिंदगी में सब कुछ हो रहा है,
तो किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने पैरों के ऊपर खुद खड़े हो जाऊंगा. So he does not know that the mechanism of body is produced by material nature, which works under the supervision of supreme Lord. तो वो ये जानता नहीं है कि सारे जीव अपने गुण और कर्म के अनुसार उसको उत्तेजित करके प्रकृति उनसे काम करा रहा है, और प्रकृति का नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. तो भौतिक बद्ध जीवी को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सब कुछ चल रहा है. The person in false ego takes all credit for doing everything independently. वो यही सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे ही एफर्ट से सब कुछ हो रहा है और किसी और की इसमें दखल अंदाजी नहीं है. And that is a symptom of his nescience. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उनका इग्नोरेंस का प्रतीक है, मतलब ये दर्शाता है कि वो कितना अज्ञानी है. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature. तो ये बद्ध जीवी जानता नहीं है कि ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है ये प्रकृति का देन है. हमारे गुण और कर्म के अनुसार हमें ये देह मिला है, जो ग्रॉस बॉडी है और सटल बॉडी है. ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है हमें प्रकृति का ये मतलब गिफ्ट है, देन है हमारे कर्मों के अनुसार. अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. और हमें कैसे मिल रहा है? भगवान की देख रेख में. हनुमंता उपदृष्टा. हनुमंता भगवंता भगवान सबको सैंक्शन कर रहा है अपने गुण और कर्म के अनुसार. हनुमंता उपदृष्टा वो एक विटनेस है और साक्षी है, और भगवान की नियंत्रण में प्रकृति हमें ये सब दे रहा है. And as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. तो कैसे भी जीव हो, एक भक्त को उसके ऊपर दया दिखाना है तो उसको एना तेना प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्, जैसे तैसे भी उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए. कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक बद्ध जीवी इतना अहंकारी है, जब तक आप उसको मतलब चढ़ा बढ़ा के कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब उसका आप प्रशंसा नहीं करेंगे, वो कोई कार्य नहीं करेगा. प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि उसको खूब प्रशंसा करो आप, ताकि वो अपने इस अहंकार से कृष्ण भक्ति में आए तो सही. बाद में कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र जपा से प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो शुद्ध हो जाएगा अपने आप. The ignorant man forgets that the supreme personality of Godhead is known as ऋषिकेशा. भगवान का दूसरा नाम है ऋषिकेश, ऋषि का ईशा, जो हमारे इंद्रियों को भी नियंत्रण कर रहे हैं. तो हमारे इंद्रिय भी हमारे वश में नहीं है, उसका भी मास्टर भगवान श्री कृष्ण है. And for due to his long misuse of senses and sense gratification, और इस इंद्रियों को हमने इंद्रिय हमारे स्वयं इंद्रिय के तृप्ति के लिए हमने उसको मिसयूज कर लिया. And he is factually bewildered by false ego, और अहंकार की वजह से वो मतलब विमूढ़ आत्मा हो गया है. Which makes him forget his eternal relationship with Krishna, और इसलिए वो अपना जो सनातन रिश्ता है भगवान से भूल चुका है और भौतिक जीवन में वो बद्ध है. तो एक वैदिक अफोरिज्म है जिसमें बोलते हैं कृष्ण भूलिया जीवा भोगवांछा करे. जो जीव कृष्ण को भूल जाता है, एनी लिविंग एंटिटी विच फॉरगेट्स कृष्णा, दैट लिविंग एंटिटी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो अगर हम आज इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम कृष्ण भगवान को भूल चुके हैं. हाँ, अभी हम रास्ते पे आ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत लंबा जाना है, अभी बहुत दूर जाना है. तो इसलिए हमें सावधानी से भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग, मंदिर के सेवा से, भगवान कृष्ण के संतृप्ति के लिए प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना है. So what we are learning in this shloka that is practically applicable in our lives, we are not the doers and yet we must do. हाँ ठीक है, अब कोई सोचेगा अच्छा मैं करता नहीं हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बैठ जाऊंगा.
तो ये भी तो सही नहीं है। हम करता नहीं है, लेकिन हमें कार्य तो करना है, बिकॉज विदाउट डूइंग एनीथिंग यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। तो एक सिंह भी, एक वन लायन ऑल्सो, जस्ट बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट doesn't mean that he will sit in one side and open his mouth and the prey will come and fall in his mouth. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगे। मतलब सिंह भी राजा है वन का, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर उसको भूख लगा है, उसको भी हंट करना चाहिए, उसको भी अगर आहार चाहिए उसको भी हंट करना है, क्योंकि वो सिंह है, उसको आसानी से अपना आहार नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फॉर अ लायन और अ टाइगर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट its food. Once in 4 or 5 days, it's able to hunt and get a small prey, which it has to eat over a period of days. It is dead, it is decayed. So, ऐसा not a very good life that even a strong animal like lion and king lead. So, this human form of life is such a auspicious life, such an important life, such a gift that we have got. तो ये मानव जो शरीर है, एक मतलब उपहार है भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, ताकि हम इस जीवन में भगवान की ओर हम चल सकें। So woodcutter cutting a tree with an axe, अगर हम मान ले कि कोई वुड कटर अपने अस्त्र से लेके पेड़ को काट रहा है, तो पेड़ को कौन काट रहा है? क्या जो वुड कटर है वो काट रहा है, या फिर जो एक्स है वो काट रहा है? दोनों सही उत्तर है। एक्स भी काट रहा है, लेकिन एक्स को पकड़ा है एक इंसान और उसकी वजह से वो कट रहा है। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम अ मायोपिक व्यू, लाइक द साइंटिस्ट, they think that everything is going on automatically. Look, the axe is cutting the tree, but behind the axe is a living entity, a woodcutter, who is holding the axe and cutting the tree. So behind that उस एक्स के पीछे एक जीव है, एक वुड कटर है जो पेड़ को काट रहा है। ठीक वैसे ही जब भौतिक वैज्ञानिक लोग देखते हैं जगत को, सोचते हैं कि सब कुछ तो अपने आप चल रहा है। अपने आप नहीं चल रहा है, वो भगवान के मार्गदर्शन में चल रहा है। ऐसे लग रहा है सब अपने आप चल रहा है, क्योंकि भगवान ने ऐसे खूबी से उसको चला रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कोई उसके पीछे है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड। Non-human species act as material nature pushes them. जो मनुष्य योनि में नहीं है, वो अपने इंस्टिंक्ट से एक्ट करते हैं, तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि अगर कोई शेर शिकार करता है और मार के खाता है, तो उसको कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि उसका प्रवृत्ति ही वैसा है, उसका शरीर ही ऐसा है, प्रकृति ने उसको ऐसे बनाया है। लेकिन मानव को बुद्धि दिया है, ऐसा बुद्धि जो भगवान की तरफ हम जा सकते हैं, और हमें ऐसे शिकार करके अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है नहीं। हमें धान्य मिलता है, उसको हम उगा सकते हैं और हम खा सकते हैं, और गाय के दूध हम पी सकते हैं। गाय को मार के उसका मांस नहीं खाना है, गाय के दूध से ही जो पोषण आपको चाहिए। काउज मिल्क इज नंबर 1 न्यूट्रिशन, इट हैज एवरीथिंग दैट ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स। तो केवल गाय के दूध पी के हम जीवन को बिता सकते हैं, हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर मे बी आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए शायद थोड़ा सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स। तो उसके लिए गाय के दूध को आपको गुड़ के साथ पीना है, तो गुड़ में बहुत सारे आयरन अंश होता है। तो ये हम करेंगे तो we will never have any deficiency, no malnutrition, no vitamin deficiency, no mineral deficiency, simply by drinking cow's milk. और गाय के दूध पीने से मनुष्य का जो मैदा है, ब्रेन है, वो बहुत शार्प हो जाता है और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाता है। That's why it's very important to take cow's milk. So human species, there is push and pull from material nature. मानव जीवन में भी प्रकृति अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि आप ये करो वो करो, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है, मन गढ़ंत काम नहीं करना है। बुद्धि से मन को नियंत्रण में लेना है,
और बुद्धि को नियंत्रण में लेने के लिए हमें मतलब शास्त्र का सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए, भक्तों का सहारा चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी विकृत हो सकता है। एक चोर भी बुद्धिमान है, वो मतलब he must be very intelligent to be able to steal, but he's misusing his intelligence। तो बुद्धि को भी मार्गदर्शन की जरूरत है, वो गुरु साधु शास्त्र से मिल सकता है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें मिल सकता है। And in human species there is evolved consciousness which can choose। और मानव शरीर में हम चॉइसेस कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और वो भी मार्गदर्शन से जब हम करेंगे तो हम एक बहुत मतलब great life, that's the whole theme of these sessions, a greater life, the Bhagavad Gita way। What is the greater life we are talking of? The Bhagavad Gita way। जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद जी मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो एक उदाहरण है, मैं हो सकता है मैं क्लास के अंत में मैं उसके बारे में वापस आके बात करूंगा। Let's try to go ahead। So the conclusion of that particular shloka was the body has certain inclinations। इस शरीर का कुछ प्रवृत्तियां है, mind has certain inclinations, इस मन का भी कुछ प्रवृत्तियां है। We cannot resist or reject them। तो उसको हम ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह हम नहीं कर सकते, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर मुझे कुछ कर दिखाने का प्रवृत्ति है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे जिंदगी में बहुत पैसे कमाना है, तो पैसे कमाइए, खूब कमाइए पैसे, और उस पैसे में कुछ परसेंटेज, जो रूप गोस्वामी जी ने फॉर्मूला दिया है, प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और उस धनराशि के एक हिस्से को आप भगवान की सेवा में लगाइए। सो वेदास, भगवद गीता और आध्यात्मिक जो जीवन है वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। वो आपको कोई भी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं देता है। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ हो और वेद बोल रहा है कि अभी छोड़ दो सब कुछ, ऐसा कभी नहीं बोलता है वेद, या प्रभुपाद जी ने भी कभी ऐसा नहीं बोला है। That's an ideal stage to reach, but that has to be reached phase-wise, slowly, not suddenly। We must drift towards our spiritual goals। We must not just have a radical shift। Radical shift करने से क्या होता है? कुछ दूर जाने के बाद फिर हमारा प्रवृत्तियां हमें पीछे खींच के लेके आएगा, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। So this is what Prabhupada is trying to tell in his purport। We'll move ahead and do shloka number 28। So I hope you all have Bhagavad Gita as it is and you're referring to it daily after my sessions. Please make sure that you read the purports that we have discussed। I'll also try to post on Prabhupada lecture like I posted yesterday, relevant to the shlokas we do। Tattva vittu mahabahu guna karma vibhagayo guna guneshu vartanta iti matva na sajjate। So guna guneshu vartanta iti matva na sajjate। Again, it's going back to the same things that we discussed in the previous shloka। So one who is in knowledge of the absolute truth, tattvavid, जो सत्य को जानता है, वो मैटिया महाभाव अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, does not engage himself in the senses and sense gratification। तो अपने इंद्रिय तृप्ति में वो अपने जीवन को नहीं बिताता है। Knowing well the differences between the work in devotion and work for fruitive results, iti matva na sajjate guna guneshu vartanta guna karma vibhagayo। तो वो बुद्धिमान जीवी जानता है कि बद्ध जीवन में कैसे प्रवृत्ति होता है, और आध्यात्मिक हम जब आध्यात्मिक पथ में आते हैं कैसा प्रवृत्तियां भगवान की ओर हमें लेके जाता है। So the knower of truth is convinced of his awkward position in materialization। जो सत्य को जानता है उसको भली भांति पता है कि इस भौतिक जगत में उसका स्थिति क्या है, उसका मन का स्थिति क्या है, उसका देह का स्थिति क्या है।
He knows that he is part and parcel of the Supreme Person of Godhead Krishna. वो जानता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है. And that his position should not be in the material creation. और वो जान लेता है कि उसको इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, उसको आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और उसके लिए वो तैयारियां करना प्रारंभ करता है. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme Lord, who is eternal bliss and knowledge. भगवान श्री कृष्ण का हम अंश है, जो सच्चित आनंद विग्रह है. मतलब हमारा स्वरूप भी सच्चित और आनंद है, लेकिन आज हम असत, अचित और निरानंद की स्थिति में है. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Lord. तो शुद्ध जब शुद्ध वो हो जाएगा, वो अपना सारा शक्ति, सारा प्रवृत्ति, सारा बुद्धि, अपना मन, तन और धन सब कुछ निछावर कर देता है भगवान की सेवा में. मतलब वो जब शुद्ध बन जाता है. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness. इसलिए वो प्रारंभ कर लेता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और भक्तों के मार्गदर्शन से, गुरु के आदेश से, गुरु से दीक्षा लेते हुए वो अपने आध्यात्मिक प्रगति करता है. He knows and it becomes naturally unattached to activities of material senses. So धीरे धीरे वो इंद्रिय तृप्ति का दमन कर लेता है, तो सब कुछ भगवान की तृप्ति के लिए करना प्रारंभ कर देता है. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. खास तौर पे भक्त जानता है कि उसका सारा जीवन भगवान की देख रेख में चल रहा है. कृष्णा भी बोलता है योगक्षेम वाम्यहम, भक्त के बारे में, और जो भक्त नहीं है उनका योगक्षेम तो अपने कर्म और गुण की देखभाल कर रहा है प्रकृति के नियमों से. वो भी कृष्णा ही देख रहा है, लेकिन भक्त के लिए especially is going to give personal attention. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions. तो जब भक्त जान लेता है कि मैं भगवान के अब सेवा में हूँ, मेरा जो रखवाला है भगवान है, तो भौतिक जगत में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी संदर्भ आते हैं, उसको वो खुशी खुशी मतलब निभा लेता है, क्योंकि उसको पता है जो पूर्व कर्म है उसके लिए, उसकी वजह से मुझे ये सब परिस्थितियां आ रहा है, और भगवान इतना दयालु है, उसका वो उन्होंने घटा के कटा के काट के एकमात्र परसेंटेज में वो मुझे दे रहे हैं, वरना इससे और कष्ट मुझे आना था. लेकिन क्योंकि मैं भक्त अभी बन गया हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भक्त बनने का, तो वो खुशी खुशी सब झेल लेता है, क्योंकि उसको पता है भगवान की देख रेख में हो रहा है. So he considers it to be the mercy of the Lord. जो भी आ रहा है जीवन में, कष्ट और नष्ट जो भी आ रहा है, वो सोच लेता है कि ये भगवान की कृपा है. इससे ज्यादा आना था मेरे जिंदगी में, इतना मैं पापी हूँ, लेकिन मेरे भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे मतलब एक अंश का एक what you can say grain of difficulty is giving me. So according to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth is in 3 different features. मतलब श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो absolute truth को 3 phases में जाना जाता है. क्या 3 phases है? ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान. ब्रह्मन निराकार, परमात्मा जो सबके हृदय में है, वो दूसरा स्तर है, और तीसरा स्तर है भगवान को जान लेना, जो परमात्मा बन के किसी सबके हृदय में बैठा है, और जो ब्रह्म ज्योति बन के पूरे विश्व में फैले हैं. एंड ही इज कॉल्ड तत्वविद. कौन है तत्वविद? तत्वविद तो महाभाव. तत्वविद कौन है? जो ये जान लेता है ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण है, और मैं उसका अंश हूं. फॉर ही नोस हिज फैक्चुअल पोजीशन इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम. तो वो जान लेता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है. जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास. तो जीव का स्वरूप क्या है? नित्य स्वरूप है उसका, वो कृष्ण के दास है. तो एक और श्लोका हम करने की कोशिश करेंगे. We will straight away go to the next shloka number 29. I can take a few points of 28. Krishna in second chapter, दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में बताते थे कि he was the term तत्वदर्शिना, मतलब सीयर ऑफ द ट्रूथ, जो सत्य को देख चुके हैं. और इस श्लोक में उन्होंने
प्रीवियस श्लोक में 28 में उसने यूज किया तत्वविद, जो सत्य को जान लेता है। और साधका का मतलब है वन हु अंडरस्टैंड्स दैट ही इज ट्रैप्ड इन दिस मशीन कॉल्ड बॉडी। और साधका कौन है? जो जान लेता है कि मैं इस यंत्र जो मेरा देह है इसमें मैं बद्ध हो गया हूँ, इससे मुझे निकलना है। इस शरीर के माध्यम से ही, मेरे मन के माध्यम से ही मुझे इससे निकलना है। सो बेस्ड ऑन अवर पास्ट लाइफ और बॉडी हैज सर्टेन टेंडेंसीज गुणा गुणेशु। तो हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों से हमारे कुछ प्रवृत्तियां और इस देह हमें इस जीवन में मिला है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाई डज समवन एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटीज। इस श्लोक में हम सीखेंगे कि कोई भौतिक प्रवृत्तियों में क्यों फंसता है, ऐसे कार्य क्यों करता है। bewildered by the modes of material nature, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ः, मतलब प्रकृति और गुणों के में बद्ध होके सम्मूढ़ मूढ़ आत्मा होके the ignorant fully engage themselves in material activities, सज्जनते गुण कर्मसु, वो भौतिक बद्ध गतिविधियों में लगा है, and he becomes attached. But the wise should not unsettle them. तान कृष्ण विदोमंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। The wise should not unsettle them. तो ऐसे लोगों को हमें विचलित नहीं करना है। Although these duties are inferior, हाँ वो जो भौतिक कार्य कर रहे हैं वो नीचे स्तर के कार्य है, लेकिन हमें उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। Due to the performer's lack of knowledge, क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है। विदो मंदान, मंदान मतलब वो अज्ञानी है। Lazy to understand self realization, मतलब वो आलस कर रहे हैं कि अपने आप को जानने के लिए, तो इसलिए वो बद्ध जीवन में चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें विचलित नहीं करना है, मगर प्रयास करना है कि धीरे धीरे हमें उसको आगे बढ़ाना है। So persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. भौतिक जगत में वो अपने मतलब कार्य में इतने फंसे हुए हैं कि वो सब कुछ यही है वही मान लेते हैं। मुझे प्रमोशन मिलना है, मुझे इंक्रीमेंट मिलना है, इसलिए वो ओवर टाइम कर लेता है, 2-3 दिन घर भी नहीं आता है, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे जीवन जी रहे हैं। दिस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ मटेरियल नेचर। ये जो देह है, मानव शरीर, प्रकृति का हमारे लिए एक उपहार है। एंड वन हू इज टू मच अटैच्ड टू बॉडीली कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड मंदान और ए लेजी पर्सन, आलस्य जीवन। आलसी कौन है? जो आध्यात्मिक प्रगति के ओर नहीं चल रहा है, वो आलसी है। भौतिक जगत में आप चाहे कुछ भी काम करो, कितना भी आप नाम और धनराशि कमाओ, उसका क्या फायदा अगर आप कृष्ण भगवान के सम्मुख नहीं जाने वाले हैं। सो इग्नोरेंट मैन थिंक ऑफ द बॉडी एज सेल्फ। वो सब अज्ञानी लोग सोचते हैं कि यही मैं देह हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, वो जानते नहीं है। बॉडीली कनेक्शन विद अदर्स आर एक्सेप्टेड एज किन्समैनशिप, और मेरे जो रिश्तेदार है यही मेरे सब कुछ है, मेरे बंधु जो लोग हैं यही मेरे सब कुछ है, इससे आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। So bodily connections with others are accepted as kinsmanship. The land in which the body is obtained is object of worship. मतलब मेरे मातृभूमि, मेरे जन्म भूमि को ही वो सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक प्रगति करने वाला वो विश्व के स्तर पे सोचता है, वो क्या पूरे सृष्टि के स्तर पे वो सोचता है। वो केवल राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में, अपने जिला के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो पूरे विश्व के बारे में, वो सबका कल्याण वो चाहता है। सर्वे सुखिनो भवन्तु जनाः, ये उसका स्लोगन है। और जनाः मतलब सारे जीव जंतु, केवल मनुष्य नहीं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर वैदिक कल्चर। इट गेव रेस्पेक्ट टू इवन इंसेक्ट और इवन a कीटाणु. It did not disrespect anything. Social work, nationalism, altruism are some of the activities for such materially designated persons. तो सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, और कुछ और सेवा करना चाहते हैं जो जनहित में है, तो उसको उन कार्यों में लगने
देना चाहिए हमें और धीरे धीरे उसको कृष्ण भावनामृत की ओर लेके आना है. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth. वो सोचते हैं अरे ये आध्यात्मिक बात है, कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होता है. देखो हम मेहनत करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हम नहीं जानते बहुत सारे लोगों को जो मेहनत करते हैं और अभी भी वो मतलब पुअर है, बहुत सारा मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में उनको कम मार्क्स मिलता है, या बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है लेकिन जॉब नहीं मिलता है. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. Such bolder persons may be engaged in such primary moral principles of life. तो ऐसे लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यों में लगा देना चाहिए, लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करना है और धीरे धीरे उनको बोलना है ये भगवान के लिए कीजिए, भगवान का नाम लेके कीजिए. So those who are our enlightened in spiritual life should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. तो हमें हमारी प्रगति को, आध्यात्मिक प्रगति में हमें बाधा नहीं डालना है और दूसरों के भौतिक विषयों में हमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना है, लेकिन उनको प्रेरणा देना है कि वो भगवान की सेवा में आए. So men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness. तो जो अज्ञानी है वो कृष्ण भावनामृत गतिविधियों के बारे में वो कभी भी रुचि लेके नहीं आ सकता. So Lord Krishna advises us not to disturb them. भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, उनको आप विचलित मत कीजिए, उनको and simply waste your valuable time. आप अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान दीजिए. दूसरों के बारे में, so it is not being selfish. Krishna is not telling you should be selfish. Acharya is telling you must preach, but to the extent only that is required. ऐसा नहीं कि दिन रात आपने मेहनत किया कि उसको जबरदस्ती आप भक्त बनाएंगे, नहीं. तो भक्त बनना है वो भगवान के हाथ में है, आपको सिर्फ भगवान के चरणों में उनको लेके आना है. आगे भगवान और गुरु देखेंगे, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते. The devotees of the Lord are more kind than the Lord. तो हालांकि भगवान ये बोल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दिन रात भक्त मेहनत कर रहे हैं कि सबको हमें आध्यात्मिक जिंदगी में लेके आना चाहिए. तो ये भक्त का दया है. So consequently they undertake all kinds of risks. तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन है, बांग्लादेश में भी इस्कॉन है, वहां पे लोग रह रहे हैं, यूक्रेन में भी है, और जब वहां पे युद्ध चल रहा है तो उन्होंने प्रसाद वितरण प्रारंभ किया है. ऐसा नहीं कि वो भी भाग गए, वो वहां पे रहे और संत्रस्त लोगों को उन्होंने प्रसादन वितरण किया. ये भक्त का गतिविधि है. So even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the act of Krishna consciousness. तो सब लोगों के पास भक्त जाते हैं और उनको बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण है, आप भगवान कृष्ण के अंश हो, आपको भक्त बनना है और धीरे धीरे आपको आध्यात्मिक प्रगति करना है. I wanted to talk about a particular incident, but a particular anecdote about Ram and Ravan. So next class, that will be the first thing I will speak. We'll mostly do it tomorrow also. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Dr. Himani Goyal, Mahadev ji, Nimesh, Nitin Gaur ji, Prashant Mittal, Deena Vasisht Mata ji, Ramesh, Dr. Ramesh ji from Dubai, Ayush Madhuria, GLA, Captain Saxena Saab, thank you for joining me. We will see you tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna मंत्र जपा कीजिए कम से कम 108 बार हर रोज, और पप्पा जी का